And if anyone having any doubts in any questions related to the agriculture, you can ask. Even I will also try to give the question answer of long and short type of questions. Very short type of questions we have already covered, so I hope you all can do and choose the correct options and true, false, or right, wrong, whatever that those all questions we have already done also. But still, if anyone think any questions which should be discussed, you can ask so that we can discuss about that question. Further, as per today's schedule, today we are going to learn one of the history chapter which is remaining, which is left, that is India after independence. Okay, so till now, whatever we have learned in the history's first chapter, that is up to independence, how India got independence after several struggles, several fights, several movements, several discussions. Okay, but still, finally, India not agree with any of the whatever they have given the proposals by the British government, and got the परमिशंस और एंड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन विच डेट, किस डेट में इंडिया इंडिपेंडेंट हुए? 15 अगस्त 1947 में, राइट? तो उसके बाद भी आफ्टर दैट ऑल्सो इंडिया फेस ए लॉट ऑफ चैलेंज हियर. After getting independence, it is not so much easy to set up all the things, because at that time several disputes are going on because of the वायलेंस अगेंस्ट द कम्युनिज्म, जो कम्युनिटी को लेकर के हिंदू मुस्लिम और जो भी बाकी कम्युनिज्म का लेकर के इशू चल रहा था, वो खत्म नहीं हुआ था, उसको मैनेज करना. एंड आफ्टर देन इवन सम व्हाट ब्रिटिश हैज डन इज, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज गिवन the authority to the princely state. At that time, there are in India also there are several governments, are there several unions are there, several ministers are there, several places are there wherein they used to rule their own. अलग अलग जगह पे अलग अलग उस समय राजा हुआ करते थे. So they used to rule over there. वहाँ पे वो लोग अपना रूल्स चलाते थे, उस तरह से रूलर था. तो वो लोग को आज़ादी दे दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की you all can either be independent or you can tie up with the India. इंडिया के साथ आप मिक्स हो सकते हो. Either someone if want to go with the Pakistan, they can go with the Pakistan also. So ये जो सेपरेशन हुआ, पाकिस्तान का सेपरेशन जो हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ इंडिया के लिए. ठीक है, यहाँ पे to gather all these states is become very difficult for India at that time. And suddenly, after 6 months of the independence only, one more shock which India got is at the time of death of M.K. Gandhi. महात्मा गांधी जी का जब शूट कर दिया जाता है by one of the leader which what is the name? Nathuram Godse, right? So उन्होंने वहाँ पे कोई एक फंक्शन में जो है उनको गोली मार देते हैं, शूट कर देते हैं और वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है. तो here also it great shocked again for India, because वो जो थे most टॉप पॉलिटिकल लीडर में माने जाते थे महात्मा गांधी जी का, और वहीं जो है नहीं रहे. और उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आया उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में. कॉन्स्टिट्यूशन का जो whatever the frameworks they have prepared, several meetings conducted, several disputes happens on the basis of the caste system, on the basis of reservation, on the basis of the linguistic problem. At that time, some of the peoples, they don't even know the Hindi also, they only knows the English. So they demanded that English should be the official language of India. एंड बाकी जो इंडियंस थे जिनको इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी, वो डिमांड कर रहे थे कि हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. आफ्टर देन कुछ इस तरह से सेपरेशंस करना था. जो भी डिपार्टमेंट है, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिस्टम, राइट? सो कुछ को जो है स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज देना था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑथोराइज्ड है, और कुछ दोनों मिला के चलाना था. तो दिस टाइप ऑफ 3 सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड. So about these all things we are going to learn in this chapter. Okay, so India after independence. So starting with that only, 15th August 1947 इस दिन को इंडिया जो है become independent. So this is the most important thing. And ये एक तरफ से बहुत खुशी का बात था. It's very joy for India. But at that time only India faced a lot of challenge due to the partitions of India. Partitions of India
into India and Pakistan and this Bangladesh even also. Okay, so as a result of partition and communal violence, ये जो communal violence था जिसको हम लोग ये बोलते हैं ये हिंदू मुस्लिम का जो विवाद था, इसको लेकर के काफी प्रॉब्लम हुआ था. तो thousands of peoples were killed and women and children faced under undue torture and ट्रामा. तो बहुत सारा नुकसान पहुंचा एट दैट टाइम. ओके, बहुत लोग मारे गए. ठीक है, ये जो कम्युनल वायलेंस के चलते, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो गए, बहुत सारे वुमेन जो थे वो विधवा हो गए. तो इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स जो है झेलना पड़ा एट दैट टाइम. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव एंड इवन मिलियंस ऑफ पीपल फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड बिकम रिफ्यूजी इन एलियन कंट्रीज. तो क्या हुआ कि काफी सारे लोग जो है एलियन कंट्रीज, जो फॉरेनर्स थे वो यहाँ पे आ गए. हम लोग का कंट्रीज से जो पाकिस्तान में बसे हुए थे वो लोग को अपना सामान छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा. दे लीव देयर होम, दे लीव देयर बिलोंगिंग्स एंड दे केम बैक टू इंडिया. बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, पाकिस्तान में शिफ्ट होना पड़ा. ठीक है, so this type of shifting happens, this type of violence happens, lots of movements happen during that time. ओके, क्योंकि सेपरेशन हो गया तो जो भी यहाँ पे मुस्लिम था वो चाह रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान में चले जाएं. पाकिस्तान में जो भी हिंदू पीपल थे वो आके यहाँ रहना चाह रहे थे. लेकिन उस समय ये जो हमारे एक लीडर थे यहाँ पे क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कुछ कुछ लीडर्स थे, वो लोग बात किए पाकिस्तान के भी जो लीडर्स थे उनसे कि ये सेटलमेंट कर लिया जाए कि हम लोग का यहाँ पे जो भी हिंदू कम्युनिटी का लोग है आप उनको रहने दीजिए वहीं पे, और हम लोग भी यहाँ पे जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज का लोग है उनको राइट्स देंगे यहाँ पे रहने का, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, बट उसके अलावा भी ये प्रपोजल्स भी काम नहीं आया और काफी दिक्कतें आई. ठीक है, so these are the things which happens and first topic which we have is challenges before the country. क्या क्या challenges था कंट्री के ऊपर ये हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 14 we are discussing, that is India after independence. Okay, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, सो इंडिया का इंडिपेंडेंस का सबसे पहला चैलेंजेस बिफोर कंट्री इज द लैंग्विस्टिक एंड प्रिंसली स्टेट. सो फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द challenges before the what are the challenges country face after the independence. So first challenges which country face is the linguistic problems and the gathering of the princely state. जो मतलब इंडिपेंडेंट कुछ कुछ स्टेट्स थे वो सेंट्रल से जुड़े हुए नहीं थे, तो वो अपना ही वहाँ का करेंसी था, अपना ही ट्रेडिशन था, अपना ही लैंग्वेज था, तो वो सारे को एक जगह पे गैदर करना, इंडिया के साथ मिलाना, दिस इज द फर्स्ट challenges which India faced at that time. Okay, so the first challenge is the integration of princely state. The integration of the princely states. So पहले जो भी स्टेट्स होता था तो इस तरह से गवर्नमेंट रूल्स नहीं चलता था, इलेक्शंस वगैरह नहीं होता था, जो भी वहां का गवर्नमेंट चलता था वो किंगडम सिस्टम में चलता था, राजा महाराजा लोग चलाते थे, तो उनके भी जो भी आगे जनरेशंस होते थे वहीं कंटिन्यू चलाते रहते थे. दैट इज व्हाई सम ऑफ द स्टेट्स हैव देयर ओन किंगडम लाइक दैट. एंड ये चीज को खत्म करना सबसे ज्यादा चैलेंजेस था, इसको गैदरिंग करना, इसको इंडिया के साथ मिलाना सबसे ज्यादा चैलेंजेस था, फर्स्ट चैलेंजेस. ओके, एंड यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन मैप. यहाँ पे जो रेड कलर में
इंडिकेट किया गया है इन पेज नंबर 161. आप अगर देखोगे, so here in some of the states are some of the parts of India shown in the red color. So those are the states wherein the princely states systems are, I mean princely systems are there. So यहाँ वो सारे states जो है princely states का मैप में देखिए, ठीक है. तो those states we need to first gather. So that is the most difficult task which we first face. Okay. After that, यहाँ पे 20 जून 1947 में सरदार पटेल ने जो है वो अपना स्टेट डिपार्टमेंट का चार्ज सबसे पहले उनको मिला. तो ही वाज द पर्सन हु इज लुकिंग who is the authority to take care of the states. He is supposed to convey the different states of India together in India and to mix with the India for the Indian formation of India. Okay, तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मिला था. एंड वीपी मोहन जो थे उनको सेक्रेटरी बनाया गया था, ठीक है, उसका. तो these are the two persons who take responsibility for these all work gathering India's all the states. After then, if we are talking about 15th August 1947, 15th August 1947 तक जो है there are lots of states they agreed and they joined India. Okay, इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिए 15th August 1947 तक. कुछ कुछ स्टेट्स थे एज लाइक जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यहाँ पे एक क्या नाम है, स्टेट ऑफ जूनागढ़. तो ये 3 लोकेशंस थे. स्पेशली दे नॉट ज्वाइन. ओके, दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. वो लोग अपना इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे. तो यहाँ पे जो नवाब थे, द नवाब ऑफ जूनागढ़ वांटेड ज्वाइन पाकिस्तान व्हाइल द पीपल वेर फेवर ऑफ एक्सेडिंग टू इंडिया. ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहां का जो पॉपुलेशन थे, वहां का जो पीपल थे, वो चाह रहे थे इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए. तो इसको लेकर के यहाँ के नवाब जो थे ये तैयार नहीं थे, ये अपना उस समय ज्वाइन नहीं हुए थे इंडिया के साथ, ठीक है. द पीपल फोर्स द नवाब टू फ्ली टू द पाकिस्तान एंड वोट इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया. तो जो भी पीपल थे, पीपल ने रिक्वेस्ट किए, पीपल ने डिमांड किए कि हमें इंडिया के साथ ही जो है ज्वाइन करना चाहिए. हम लोगों को इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए मतलब मजबूर किए उनको, ठीक है. आफ्टर देन जम्मू कश्मीर का अगर बात करें, वहां का जो रूलर थे दैट इज हरि सिंह बहादुर जी थे, श्री हरि सिंह बहादुर जी. वो भी जो है उस समय नहीं मान रहे थे कि इंडिया के साथ हम मिले. वॉज हिंदू, वो हिंदू थे, लेकिन वहां का जो पॉपुलेशन था, जम्मू कश्मीर का जो पॉपुलेशन था एट दैट टाइम, इट इज 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर मुस्लिम. तो क्योंकि वो 75% मुस्लिम्स थे और ये हिंदू थे लीडर, तो इसलिए यहाँ पे भी जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इन्वेंट कर रहे थे, मतलब आक्रमण कर रहे थे कि नहीं, हम लोग को इंडिया के साथ नहीं जाना है, नहीं ज्वाइन करना है. तो इसीलिए जम्मू कश्मीर भी अलग जो है थे, अभी तक अलग था, ठीक है. एंड उसके बाद जो है महाराजा जो है 26 अक्टूबर 1947 को जो है वो स्वीकार कर लिए कि नहीं, इंडिपेंडेंट ही रहना है, हमको कोई कहीं भी ज्वाइन नहीं करना है. एंड आफ्टर दैट हैदराबाद में जो निजाम करके थे, द निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू रिमेन फ्री एंड एक्सपेंडेड हिज आर्मी. तो वो जो है वहां का निजाम जो थे, ही आल्सो वांटेड नॉट वांटेड टू ज्वाइन विद द इंडिया. तो ये 3-4 कुछ और भी ये थे जो ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे, बाकी सबको ये मिला लिया गया था, ठीक है. आफ्टर देन सेकेंड मोस्ट चैलेंजेस इज द रिहेबिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज. तो रिहेबिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज मतलब ये जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से जो इंडिया का ये हो रहा था, रिलोकेशंस हो रहा था, दैट is also one of the challenges. So first challenges was the integration of the princely state. Second challenges, if we talk, then this is the rehabilitations of the refugees. Okay, rehabilitation. Okay, rehabilitation of the रिफ्यूजीज. तो जो भी रिफ्यूजीज थे जो मतलब शिफ्टिंग कर रहे थे या फॉरेनर्स जो थे, वो उनको कन्वे करना. तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे
after the partitions 8 million refugees come to India from Pakistan. तो 8 million लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, शिफ्ट हुए थे, ठीक है. So can you imagine 8 million people means how much? Okay. Leaving their homes and all belongings. So ये सारे वहां पे जो भी घर था, वहां का जो भी सामान था अपना सारा छोड़ के वो ऐसे ही आ गए थे, आना पड़ा था, क्योंकि वायलेंस इस तरह से हुआ था, इस तरह से डिस्प्यूट हुआ था, इस तरह से वहां पे टॉर्चर किया जा रहा था. सो दे हैव टू शिफ्ट हियर. तो वो लोग छोड़ के आए थे. द न्यू गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडेड देम होम, ऑक्यूपेशन एंड अबव ऑल इमोशनल सिक्योरिटीज. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट नया इंडिया का नया गवर्नमेंट बना था, तो दे प्रोवाइडेड देम होम, place for living, they provided them all the requirements essential for living. तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया इनको. And the government talked to the situations meaningfully, tackled the situations meaningfully and helped the refugees restart their life. तो इनका लाइफ को फिर से शुरू करने का एक मौका दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज सेटल्ड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली. ये कुछ कुछ लोकेशंस है जहां पे ज्यादातर रिफ्यूजीज को प्लेस दिया गया, ठीक है. दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में, पंजाब में. दीज आर द प्लेसेस वेयर दे सेटल्ड. ओके. आफ्टर दैट रिलेशन विथ पाकिस्तान, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था बिफोर India after the independence, after the getting independent, that how should be the relations with the other countries or the nearby countries. So relations with Pakistan is the most important thing. Relations with Pakistan. So everyone knows how or what is the relations with the Pakistan. Still it is not good relations, especially India, Pakistan, India, China. These are some of the nearby countries with whom the relations is not so much good. Okay, and the reason being, the basic reason being with the Pakistan as the communal violence only, a community को कम्युनिज्म को लेकर के ही है. तो ये अगर देखा जाए, कश्मीर इशू भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था. दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट रीजन फॉर द बैड रिलेशंस विद पाकिस्तान. ठीक है, कश्मीर को जो है पाकिस्तान का कहना है कि दैट कश्मीर इज ऑफ पाकिस्तान ओनली. Okay, which is not actually में. So it was important for both India and Pakistan to maintain a friendly relations. It is not necessary कि इंडिया को ही सिर्फ जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ अच्छा relations रखे. It is the responsibility of Pakistan also to maintain the good relations with India. Okay. So अगर if we need a healthy relations with Pakistan, then Pakistan also needs support of Indians, right? So this is the most important thing. Relations should be good. And the government was ensured with the task of protecting the minorities, Muslims. So यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है इतना इंश्योर किए, जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग थे उनको कुछ स्पेशल इस तरह से ये देने का, ठीक है, माइनॉरिटीज को कुछ इस तरह से स्पेशल प्रोटेक्शंस देने का इंश्योर किए, ठीक है. बट स्टिल जो है ये मतलब ताकि रिलेशंस अच्छे से बना रहे और इस तरह से जो ये हो रहा था, जो रिहेबिलिटेशन हो रहा था, ये कम हो, ठीक है. तो दिस इज द रिलेशंस इज द थर्ड पॉइंटर. देन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. द मोस्ट ऑफ द important thing of any particular country is the economical growth. So at that time India is facing a lot of challenges, and because of that only economically India become very weak and it become very difficult to become a good develop the economic system of India. तो economic system of India को बढ़ाने के लिए और रोजगार वगैरह देने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, और जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह काफी सारा उधर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था, ठीक है. काफी जो ये था एग्रीकल्चरल लैंड जो था उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ लैंड व्हिच गोज टू द पाकिस्तान में आ गया था, ठीक है. काफी सारे इंडस्ट्रीज बहुत कम थे यहाँ पे. तो these all things, due to these all things, now economically also it become very challenge for India to again set up all these things. Okay, so economical problem is also one of the most important problem. So here if you are talking about the fourth problem, challenges which India face is the economical problem. Economic problem. Economic problem. Okay, after this
these are the things in economic users need to keep in mind कि economic का मतलब होता है the growth. So growth तभी होता है if all the agricultural lands which goes to the other countries. जैसे अगर हम लोग बात करें जब बिहार और झारखंड का भी सेपरेशन हुआ उस समय भी अगर आप देखोगे कि there are lot of things which goes to झारखंड में चल गया क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी था वो ज्यादातर झारखंड में चल गया, ठीक है। और जिसका रीजन से जो है झारखंड इतना ग्रोथ कर गया और बिहार उतना डेवलप नहीं हो पाया एज कम्पेयर टू झारखंड, राइट। तो ये चीज हुआ पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में भी। अगर आप देखोगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैंड्स प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस का जहां पे ज्यादातर खेती होता था दोज ऑल गोज टू द पाकिस्तान, वेंट टू द पाकिस्तान। दिस लीड शॉर्टेज ऑफ फूड इन इंडिया। तो इंडिया में फूड का शॉर्टेज हो गया, जहां पे फूड का शॉर्टेज होगा वहां पे फूड का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग अभी लॉकडाउन में ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी कोई सामान शॉर्टेज पड़ जा रहा था, जैसे कोई वेजिटेबल्स हो या इस तरह से कुछ सामान, तो द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स इंक्रीज, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन कम होगा देन डिमांड ज्यादा होगा लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। सो दिस हैपेंस एंड jute and cotton industry also goes there. After then India overcome economic shortage after year of labor hard. तो काफी दिन अच्छे से मेहनत लेबर करने के बाद, अच्छे से मेहनत करने के बाद जो है इसको फुलफिल कर पाए इंडिया, ठीक है। एंड ड्यू टू दैट ओनली ये इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्रीकल्चर का जो भी है या इस तरह से जो इंडस्ट्रियंस है वहीं सफर किए, क्योंकि इकोनॉमिक जब सफर करता है देन ऑल द अदर पीपल्स आल्सो फेस चैलेंजेस। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे वीवर्स या आर्टिसंस और बर्बर्स और कारपेंटर्स, ये सारी जो भी अदर प्रोफेशनल्स थे उनको भी दे आल्सो फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, ओके। एंड आफ्टर देन इन सिटीज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन स्लम एरिया। तो ये भी एक चैलेंजेस था कि ज्यादातर पीपल जो है वो अर्बन या स्लम इस तरह से लोकेशंस में रहते थे। दे डोंट हैव सो मच गुड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, तो हर चीज का एक्सेस उतना अच्छे से वो लोग को था नहीं, ठीक है। तो these are the some of the challenges which India face. So एक एक करके बताइए क्या क्या चैलेंज इंडिया फेस किए, आप बताइए। हाँ, what are the challenges India face after independence? आप भी बताइए, आप लोग जो भी ऑनलाइन हैं। हाँ हाँ, इंटीग्रेशन, मिलाना, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट था उसका एक साथ यूनिटी करना, मिलाना सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और एक बताओ, anyone else? Okay, very nice. Relations with Pakistan. Okay. Economic problems. Okay, very nice. Sit down. आप बताओ कुछ. Tell something. Whoever online, you all also tell what are the challenges India face after independence. कोशिश कीजिए whatever he has told other than that, as like he has told the first integrations of princely state, second he said economical problems, third relations with the Pakistan. Anyone any else pointers? Rehabilitations of refugees, very nice. So very good, sit down. So these are the some challenges which the people face, okay। और इसके बारे में एक एक करके आप लोग डिस्क्राइब करके लिखोगे कि कैसे how the integrations of princely states happens, how the rehabilitations we stop, and how the relations with Pakistan maintain, and economic problems how we can overcome, or how we overcome economic problems. So these are the basic challenges which face. After then the framing of the Indian Constitution. So next topic which we have is the framing of the Indian Constitution. So Indian Constitution frame करने के लिए सबसे पहले जो है कौन फ्रेम किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्ट किए गए थे परमानेंट चेयरमैन असेंबली का, लेकिन जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो किसने बनाया है? दैट इज द क्वेश्चन। हम लोग क्लास 5 में पढ़ते हैं ये सब। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था, तो कमेटी का हेड कौन थे? B.R. अंबेडकर, एग्जैक्टली, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उनका लीडरशिप पे
जो है कॉन्स्टिट्यूशंस बना है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कैसे हुआ। चलिए मिटाने का जरूरत नहीं था। So next topic, which is the framing of the Indian Constitution. The framing of the Indian Constitution. So Indian Constitution का framing कैसे हुआ? So the first most important thing is the Constitutional Assembly was assigned the task of framing the Constitution. So सबसे पहले एक rules बनाने के लिए दिया गया इनको, laws बनाने के लिए दिया गया, ठीक है, Constitution Committee को. So the Constitutional Assembly met for the first time on 9th December 1946. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि in which date the first time Constitution Assembly met held. तो यहाँ पे 9th December 1946 में जो है first time they have met. 9th December 1946, हाँ ये लोग मिले थे. Constitutional Assembly मीट तो हुआ ही था, फर्स्ट टाइम हुआ होगा इससे पहले ही, ठीक है, फ्रीडम से पहले भी इससे काफी मीटिंग हुआ है. तो दे हैव मीटेड, दे यूज्ड टू मीट सेवरल टाइम्स. उसके बाद भी काफी सारा मीटिंग के बाद काफी सारा रूल्स नियम्स वगैरह बना है, ठीक है. सो here Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of the assembly, was appointed the provisional president of the assembly. On 11th December Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent chairman of the assembly. तो permanent chairman जो है वो appoint किया गया इनको, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है. आफ्टर देन पीपल मीट सेवरल टाइम्स, वहां पे बहुत बार उसके बाद मीटिंग हुआ, बहुत सारी डिस्कशंस हुआ, बहुत सारी इश्यूज को लेकर के, ठीक है. तो जो बेसिक मुद्दा था वो क्या क्या था, लेट अस सी व्हाट आर द बेसिक थिंग व्हिच डिस्कस. फर्स्ट द मेन फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स था, ठीक है. द मेन फीचर्स of our constitution. What are the basic or what are the main features which we have? First features which we have is adult suffrage. Okay, adult suffrage. So what this adult suffrage means, let us see. So the constitution lays down that all the Indians above age 18, सारे इंडियंस इसका एज 18 से ज्यादा होगा, ठीक है, कैन वोट इन ए स्टेट एंड सेंटर, ठीक है. तो स्टेट और सेंटर में जो इलेक्शन होगा उनमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया दैट इज 18 और अबव एज जिसका भी होगा वो वोट कर सकते हैं. Irrespective of the caste system, irrespective of the gender system, irrespective of the any communalism system. कोई भी कम्युनिटी के हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जेंडर के हो, सभी वोट कर सकते हैं. The criteria one fixed, that is age above 18. Okay, so this is the things. Irrespective of educational background also, ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि is they literate or illiterate or is he educated or not. Okay, so I mean thinking irrespective of these all things, one criteria made, that is age should be above 18. Equality before law. So this is the first thing which adult suffrage means. After then equality before law, equality before law. So what does this equality before law means? So द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये गारंटी दिया गया कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा. एवरीवन विल बी ट्रीटेड एज इक्वल. ओके, एवरीवन विल बी इक्वल एज पर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इट हैज गारंटीड टू द पीपल ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन. कास्ट और रिलीजन कोई भी हो, सारा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा हर केस में, ठीक है. सो ऑल द सिटीजंस वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस, कोई भी कम्युनिटीज से हो, कोई भी
सिटीजन हो, ठीक है, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया जॉब में भी और एजुकेशन में भी, ठीक है। सो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में, ठीक है, देयर शुड बी नो एनी आई मीन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट. So this is law, equality before law. So these are the two things which things. After then privilege for the poor and disadvantage, इसके बारे में भी बात हुआ कि जो poor और disadvantage जिनके जो lower caste है, जो इस तरह से जो मतलब जो undeveloped ये है caste के लोग हैं, उनको कैसे हम लोग ऊपर लेके जाएं, how we can I mean take them above, how we can equalize them. So उसके लिए काफी सारा काम हुआ. So this is the next pointer, which is the another features of the constitution, that is privileges for the poor and disadvantaged. So privilege for the poor and disadvantaged. So poor background से जो थे या जो disadvantaged background से थे, they got lots of privilege over there. So article 17, according to article 17, we have learned in our previous class also that these constitutions give the authority to the untouchability peoples, those who are belong to the untouchables. We give them authority to go to the temples, and they can go to the temples. They can as like if you are talking about especially scheduled caste or scheduled tribes people, they will get equal opportunities in everywhere. They especially will get a particular seat reserve. Okay, in case of in case of government system, government jobs also, and in case of case of legislative places also. तो government के sector में भी मिलेगा, job के sector में भी मिलेगा. तो this reservation system comes for these peoples. Okay. After then division power. यहाँ पे division power एक बहुत important topic है, इसको हम लोग समझ लेते हैं. Okay. यहाँ पे तीन तरह से डिवाइड किया गया डिवीजन पावर को. बहुत जल्दी से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. यूनियन लिस्ट एक डिवीजन ऑफ पावर्स. तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो है स्पेशली we have kept the subject as like revenue, defense and foreign affairs. So ये तीन चीजें को जो है यूनियन में रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया कि they will look into it. Okay, they have the authority of all the matter related to the foreign affairs, related to the revenue department and related to the defense also. Okay, so this is the first which is union list, and after then it comes the state list. Second it comes state list. So in state list, education, okay, education department given to the states, then health department given to the states. So it is the responsibility of states to take care of. So health department और education department जो है state wise देखते हैं. This what the states. And after then concurrent list. So concurrent list में वो सारा list आया जिसमें दोनों का जो है authorities है. State also will look into it and central also will look into it. So concurrent list gives as like forest, हाँ, एंड एग्रीकल्चर. ये सारे इस तरह के जो भी डिपार्टमेंट है, दिस ऑल डिपार्टमेंट इज टेकिंग केयर बाय द concurrent list. Okay, so these are the three basic system of the government. Okay, division of powers of government. Further we will discuss in our next class. Okay.